So the third type of the plant tissue along with the meristematic and permanent was secretory tissue. See, as the name suggests, ठीक है, नाम से ही पता चलता है, the group of those cells which secrete something. These are also the kind of permanent tissues, means the cell are in a state of permanent. Cells are not dividing, but those permanent cells are secreting something. That something may be any kind of the chemical like latex, any alkaloids, latex like rubber, okay, any kind of the other chemicals like flavonoids, or even the water. Okay, so this could be anything which is secreted from the plant, that is secreted by some special type of the cells. So group of those cells will be called secretory tissue. If I talk about example, suppose we are having the rubber. Rubber is a latex that is secreted from a plant, that is Hevea brasiliensis. Rubber is secreted from the Hevea plant. So this Hevea or this plant is generally called rubber plant due to the secretion of this latex. So rubber in nature is a latex, ठीक है, रबर का नेचर जो होता है लेटेक्स होता है. अब रबर प्रोड्यूसिंग, लेटेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं स्टेम के अंदर. कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये लेटेक्स क्या है, स्टोर्ड है. और जैसे ये बाहर सीक्रेट होता है तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स सीक्रेटिंग सेल्स बोलते हैं. So group of this type of the cell will be called secretory tissue. कुछ अदर प्लांट्स होते हैं, कोई और एग्जांपल बता सकते हो प्लांट में जो कुछ सीक्रेट करते हो? Yes. Any other example in the plants? रबर तो बहुत कॉमन है, रबर सीक्रेट करते हैं कुछ प्लांट्स. उसके अलावा कैलोट्रोपिस. Yes, Calotropis. Calotropis procera. ठीक है, आंख जो होता है, आंकड़ा, आंख या मदार जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसमें से भी लेटेक्स सीक्रेट होता है फ्रॉम देयर लीव्स. इट मींस अनलाइक द अदर लीव्स, नॉर्मल प्लांट के लीव्स तो सीक्रेट नहीं करते लेटेक्स को, उनके लीव्स में, उसके लीव की एनाटॉमी में, कॉर्टेक्स के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं विच आर हैविंग द लेटेक्स. ठीक है, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सीक्रेटरी टिश्यू. So there are many things, there are resins, there are gums, there are latex, there is mucilage, there are many things. Even the water also is being secreted from the plant. So group of all those cells will be called a secretory tissue. I think this is clear to you that what are secretory tissues. Yes, sir. Okay. If I talk about the type of secretory tissue, so there is a major part of the latex in the plants. Most commonly the latex is secreted. So we have categorized it into the a major part. So first is latex, या latissiferous tissues. Another one are the glandular tissues. In the secretory tissue system, there are two types of the tissues. One are the latissiferous tissue, another one are the glandular tissues. ठीक है, जब latex secrete किया जाता है different type of cells से, so group of those cells will be particularly called a latissiferous secretory tissue. Okay, this is a special type, that is latissiferous tissues. If some other things are mainly secreted through some glands. सर रिपीट करना एक बार. Latissiferous tissue बेटा वो होते हैं जो particularly latex को ही secrete करते हैं. ठीक है, the latex secreting cells or the group of latex secreting cells will be called latissiferous tissue. क्योंकि latex glands के थ्रू secrete नहीं किया जाता. latex secrete करने के लिए खुद tissues ही अलग हैं प्लांट के अंदर. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की सेल्स ही अलग होती हैं जो केवल latex ही secrete करती हैं. उन सेल्स को हम latex cells बोलते हैं या latex vessels बोलते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे इसके सब टाइप्स में.
तो लेटेक्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं अलग ही, उन सभी सेल्स के ग्रुप को हम बोलेंगे लेटिसिफेरस टिश्यू। क्लियर है? यस सर। ग्लैंडुलर वो होते हैं कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किया जाए। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लैंड्स इन द एनिमल्स। एनिमल्स में तो बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ह्यूमंस में ग्लैंड्स होती है बहुत सारी, बट देयर आर सम ग्लैंड्स आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम और इन द प्लांट्स। सो इफ दीज ग्लैंड्स are secreting something for any purpose, the function may be anything, okay, they may secrete some chemicals to digest the food even, okay, they may secrete water or they may secrete resin, gums or anything. So the purpose or the function or the chemical substance that is being secreted, that can be different, but that is necessarily secreted by the glands, some kind of the glands. Even some there are some glands present in the plants which secrete chalk, the calcium carbonate. Okay, so if anything other than the latex is being secreted through the glands, it will be called glandular tissue. Clear hai? Yes sir. Okay, so secreted tissue are further of two types, the lenticephorous and the glandular tissues. So very firstly, let's just talk about the lenticephorous tissue. So lenticephorous tissues, as I told you earlier, these are the group of cells. Since it is a tissue, we will always write it is a group of cells which particularly secrete latex. Group of cells which particularly secrete latex. What is latex? Definition wise, latex देखिए सभी को पता है, but if we are going to define this or if we are going to define the latex, so definition wise it would be a liquid, a viscous liquid, a viscous fluid having sugars. What are sugars? The carbohydrates or lipids? Carbohydrate. Carbohydrates, monosaccharides. Carbohydrate. Sugars, lipids, some sort of the proteins, any kind of the organic acids, these all things. So latex is a kind of mixture, and of course the water, the major part is water. Okay, so latex is a viscous liquid or a fluid that is made up of the water, and in the water there are dissolved some sugars, lipids, proteins or the organic acids. If I talk about the sugars, okay, so these sugars may be also occur in the stored form. So it may be starch also. Starch is not a sugar, starch is a polysaccharide. But if all the sugars are dissolved or forming a polymer, so starch may be also present in the latex. ठीक है, बट स्टार्च का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर ही तो है, इसलिए हम स्टार्च को अलग से नहीं दिखाते हैं. सो लेटेक्स इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर और अ विस्कस फ्लूइड. जब पर्टिकुलरली लेटेक्स सीक्रेट किया जाता है from any kind of the cells, then it will be called the lenticephorous tissues. For example, the rubber plant, okay, the Sonchus plant. Sonchus एस्पर एक प्लांट होता है, हमारे आसपास मिलता भी है बेटे, ठीक है, छोटा सा येलो कलर का फ्लावर होता है इस तरह से, और उसके स्टेम पे जो है ना जेरोफिटिक है, उसके स्टेम पे स्पाइन्स भी दिखते हैं, लीव्स भी स्पाइन्स में मॉडिफाई हैं. I will show you this plant in the practical. Practical में कभी पिक्चर दिखाऊंगा या आप गूगल कर सकते हो Sonchus plant. Sonchus plant भी लेटेक्स सीक्रेट करता है. Calotropis, आग का जो पेड़ है वो भी लेटेक्स सीक्रेट करता है. ठीक है, यूफॉर्बिएसी के कुछ मेंबर लेटेक्स सीक्रेट करते हैं, जैसे कि आपका आंवला. ठीक है, अम्बेलिका होता है स्पीसीज नेम, जीनस नेम मुझे याद नहीं है. तो आंवला भी जो है आपका लेटेक्स सीक्रेट करता है. ओके, फिकस रिलीजियोसा, क्या होता है फिकस रिलीजियोसा? पीपल. ठीक है, फिकस बेंगालेंसिस बरगद, ये सब भी लेटेक्स सीक्रेट करते हैं थ्रू द लीव्स. सो दीज आर सम प्लांट्स व्हिच आर लेटेक्स सीक्रेटिंग प्लांट्स.
So if I justify or classify the families, so mainly the plants from Euphorbiaceae, okay, the plants from Euphorbiaceae, compositae or Asteraceae. 8 families are there which have traditional name as compared to the validate name. Validate name तो Asteraceae है, but उनके traditional name ज्यादा चलते हैं, like compositae. ठीक है. ग्रैमिनी किसका नेम होता है? ग्रैमिनी. ग्रैमिनी is a Wheat family. yes. हाँ जी बेटे दोबारा बताइए. Wheat family. यस, वीट की जो फैमिली होती है दैट इज पोएसी. ठीक है. पोएसी में लेटेक्स सीक्रेट नहीं होता. मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कुछ फैमिलीज के ट्रेडिशनल नेम ज्यादा कॉमन होते हैं. कंपोजिटी, यूफॉर्बिएसी एंड मोरेसी. मोरेसी लाइक फिकस रिलिजियोसा. ठीक है. पीपल या बरगद जो है वो आपके मोरेसी के फैमिली के मेंबर हैं. सो कॉमनली दीस 3 फैमिलीज यूफॉर्बिएसी, कंपोजिटी एंड मोरेसी, दे सीक्रेट द लेटेक्स. ओके. Yes, sir. If I talk about the type of the latex secreting cells, so these cells are also of 2 types. Means the latissiferous tissue is itself of 2 types. One are the latex cells, another are the latex vessels. लेटेक्स सीक्रेट करने के लिए भी प्लांट में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं. वन आर दी लेटेक्स वेसल्स, अनदर आर दी लेटेक्स सेल्स. तो केवल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, फंक्शन सेम है. क्या? लेटेक्स सीक्रेट करना. तो लेटेक्स सेल्स क्या होती हैं? सपोज ये कॉर्टेक्स है किसी भी चीज का, स्टेम का या लीफ का, क्योंकि लेटेक्स स्टेम से भी सीक्रेट होता है और लीफ से भी. सपोज ये स्टेम का कॉर्टेक्स है, इसमें बहुत सारी परमानेंट सेल्स हैं. उनके अलावा पर्टिकुलरली लेटेक्स सीक्रेटिंग सेल है. सपोज ये एक सिंगल सेल है, बाकी सब क्या है आपके परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा. ये एक सिंगल सेल है, थिक वॉल्ड है. ठीक है. लिविंग है, नॉट दैट मच थिक, लिग्निन की थिकनिंग नहीं है. लिविंग सेल है, स्टोर किया हुआ है क्या? लेटेक्स. तो ये पर्टिकुलरली एक सिंगल सेल है. ठीक है. इसके साथ डिफरेंट सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, बट ये ब्रांच्ड नहीं है, ये अनब्रांच्ड है. अनब्रांच्ड थिक स्टोरिंग लेटेक्स प्रेजेंट इन बिटवीन दी कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम और दी लीफ. तो अगर सेल पर्टिकुलरली लेटेक्स सीक्रेटिंग सेल अगर ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है, तो उसको बोला जाता है लेटेक्स सेल. ठीक है. या नॉन आर्टिकुलेटेड डक्ट. नॉन आर्टिकुलेटेड डक्ट. ठीक है. तो ये एक तरह की डक्ट है. ये सेल बनी कैसे थी? नॉर्मल कॉर्टिकल सेल से ही बनी थी. इसमें धीरे धीरे कैविटी क्या होती रही? प्रोड्यूस होती रही. किसी सेल में अंदर कैविटी बन गई. कैविटी बनने के बाद कुछ चीजें आके इसमें स्टोर होती रही. प्रोटीन भी बनेगा, शुगर्स भी बनेंगी, लिपिड्स भी बनेंगे. तो वो चीजें आके इसमें स्टोर होती रही. वाटर भी आया. अब यहाँ पे उन सब चीजों के आने की वजह से अब आप ये नहीं पूछेंगे सर क्यों आए, तो ये तो नेचुरल एडेप्टेशन है भाई. अपने आप नेचर ने पर्टिकुलर कुछ प्लांट्स को ही क्या दिया है, बून है कि आप जो है इनके अंदर ही बनेगा, अदर प्लांट्स में नहीं बनेगा. तो इनके अंदर चीजें स्टोर हुई और वो फाइनली क्या बन गया? लेटेक्स. और ये सेल क्या बन गई? लेटेक्स प्रोड्यूसिंग सेल बन गई, जो कि ब्रांच्ड नहीं है, एक सेल है जो लेटेक्स को क्या कर रही है? सीक्रेट कर रही है. क्लियर है? लेटेक्स सेल्स क्या होते हैं? लेटेक्स सेल्स को नॉन आर्टिकुलेटेड डक्ट बोला जाता है क्योंकि इनका नेटवर्क नहीं है. ठीक है. लेटेक्स सेल्स का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये नॉन आर्टिकुलेटेड है. क्लियर है? व्हाट आर लेटेक्स सेल्स? Yes, sir. अनदर वन होते हैं बेटा लेटेक्स वेसल्स. ठीक है.
लेटेक्स वेसल्स क्या होते हैं? बहुत सारी लेटेक्स सेल्स जब आपस में डिफ्यूज होते जाएं और एक नेटवर्क बना ले। अब डिफ्यूज होने से जरूरी नहीं कि लेटेक्स वेसल्स के अंदर सारे लेटेक्स सेल्स ही हैं, उन्होंने एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बना लिया। ये कॉर्टेक्स था सपोज, ये एक लेटेक्स सेल थी, ये दूसरी लेटेक्स सेल थी, ये तीसरी लेटेक्स सेल थी, ये चौथी। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी मर्ज हो गई आपस में। ऑल द लेटेक्स सेल्स मर्ज मींस ये एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन है लेटेक्स का वेसल। ठीक है, वेसल का मोड हमेशा सिनकाइटस होता है, याद है ना? तो ये तो एक केवल सिंगल सेल है, वेसल्स के अंदर एक पूरी स्ट्रक्चर है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है। तो उसमें देखिए क्या हुआ, सपोज ये स्टार शेप है, बाकी सारी बाहर पेरेन्काइमा सेल्स हैं, इनके अंदर लेटेक्स भरा हुआ है, यानी ये बीच बीच में ब्रांच्ड है, इनके बीच में भी सेल हो सकती है, कितनी भी हायर ब्रांचिंग हो सकती है इनमें। तो ये पूरा एक वेसल कहलाता है, वेसल विच विल सीक्रेट दी लेटेक्स। सो द मोर लेटेक्स विल बी सीक्रेटेड बाय वेसल और सेल। म्यूट रखें बेटा। More amount of the latex will be secreted by vessel or latex cell. Vessel. Vessel. So latex vessel is formed when the latex cell joins to form a network. Since there is a network, it is called articulated duct. It is called the articulated duct. Clear है? So simply, very simply, these are of two types: the latex cells, which is a very simple cell that is not advanced, which are going to secrete the latex. So in some plant, only the latex cells are present. In some plant, only the latex vessels are present, in which there is no latex cell, they all are combined to form the vessels. In some plants, both of these are present. तो जो रबर प्लांट होता है बेटे, हीविया ब्रेसिलेंसिस, रबर प्लांट में वेसल्स होते हैं, इसी वजह से ज्यादा लेटेक्स सीक्रेट होता है। ठीक है, निम्फा एक प्लांट होता है, निम्फिया हाइड्रोफाइट है, ये भी लेटेक्स सीक्रेट करता है बहुत कम अमाउंट में। तो निम्फा एग्जांपल है किसका? लेटेक्स सेल्स का। कैलेट्रोपस में भी सेल्स ही होती हैं, बट सेल्स का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए लगता है कि कैलेट्रोपस भी ज्यादा अमाउंट में लेटेक्स सीक्रेट कर रहा है, बट एज कंपेयर टू रबर इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। रबर बहुत हाई अमाउंट में सीक्रेट होता है। हमारे यहाँ रबर के प्लांट है नहीं, साउथ इंडिया में केरला साइड होते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे सपोज ये रबर का प्लांट है, तो ऐसे स्टेम में कट लगा देते हैं, कहां तक? सेकेंडरी जाइलम तक। ठीक है, और फिर धीरे धीरे लेटेक्स अपने आप सीक्रेट होता रहता है स्टेम से। ऐसे कटोरी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाउल, और फिर क्या आपका लेटेक्स सीक्रेट होता रहता है। तो हाई अमाउंट में सीक्रेट होता है। वो कमर्शियल रबर नहीं है, उस रबर को फिर क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, देन फाइनली वो क्या बनता है? कमर्शियल रबर, जिसको हम यूज करते हैं मेनली टायर्स में। ठीक है, रबर प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? जनरल साइंस का क्वेश्चन है। कमर्शियल रबर बनाने को क्या बोलते हैं? यस, अच्छा, क्या मिलाया जाता है जब रबर बनाते हैं? तो रबर को कमर्शियल रबर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? आवाज आ रही है? जहां तक मुझे याद है सल्फर मिलाया जाता है बेटे, और वल्कनाइजेशन बोलते हैं शायद उसको। ठीक है, देख लेने एक बार। तो कमर्शियल रबर वो होता है। चलिए अब बात करते हैं लैटिसिफेरस टिश्यू के इंपॉर्टेंस की। तो इंपॉर्टेंस क्या हुआ? एक तो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है रबर, ठीक है। दूसरा प्लांट के लिए स्टोरेज का मीडियम है ये सेल्स। अगर कोई यूफोर्बिएसी के मेंबर ज़ेरोफाइट होते हैं, कुछ प्लांट्स को अगर स्टोरेज करनी है वाटर की, जैसे कि कैलोट्रोपस आक का पेड़, अब वो क्या है ड्राई कंडीशंस में मिलता है। अगर सॉइल के अंदर वाटर नहीं है
तो जब भी रेन आई थी उस वाटर को वो स्टोर करना चाहता है, स्टोर करके रखना चाहता है, ठीक है, तो वो लेटेक्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है बेटा, ठीक है। रबर प्लांट भी अपने रबर को स्टोर करके रखता है, वो तो हम कमर्शियली उसको क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो भी उसके लिए भी क्या है, स्टोरेज का काम करता है। ऐसे ही जो मेनली ज़ेरोफाइट्स होते हैं वो वाटर स्टोर करने के लिए लेटेक्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ द लेटेक्स दे स्टोर द वाटर। अलोंग विद द वाटर सम अदर फूड मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, फूड भी स्टोर कर लिया जाता है, प्रोटीन्स भी स्टोर कर लिए जाते हैं, एंड मेनली द वाटर। Third one importance is also for us. Some latex are medicinal. ठीक है, कुछ लेटेक्स मेडिसिनल भी होते हैं, कैलेट्रोपस का भी इवन मेडिसिनल है, और आंवला का जो लेटेक्स होता है वो भी मेडिसिनल है। क्लियर है बेटा लेटिसिफेरस टिश्यूज? Yes, sir. इट्स वेरी सिंपल थिंग। कुछ एग्जांपल्स याद रख सकते हैं कि कहां से सीक्रेट होते हैं, और हम टाइप याद रख सकते हैं कि लेटेक्स सेल्स क्या है और लेटेक्स वेसल्स क्या है।